अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे पेट के हिस्से, शरीर के हिस्से शुद्ध कर, पवित्र कर। हमारे पैरों को शुद्ध कर, पवित्र कर। हमारे बदन को शुद्ध कर, पवित्र कर। कुछ भी इन्फेक्शस, कुछ भी डर, कोई भी प्रकार का खतरा जो इस शरीर को परेशानी में डालना चाहता है, आई कमांड फॉल डाउन, डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक हथियार जो इस शरीर को उपद्रव करना चाहता है, आई कमांड फॉल डाउन, डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन हमारी हियाव है खुदा, और हमारे जीवन के अंदर हमारे रास्ते हमको दिखा खुदा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, पवित्र आत्मा हमें बाइबल रीडिंग में सहायता करो। जो हथियार हमें लिमिट करना चाहता है, मैं उसे कमांड करती हूँ, ब्रेक, डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे खुदा परमेश्वर, वो हथियार को टक्कर लगाते हैं नासरी यीशु के नाम में, और कमांड करते हैं, हट जा हमारे रास्ते में से, दोबारा हमारा विरोध करने के लिए नहीं रुकना। नासरी यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत भर जाए और हमारे रास्ते आनंद से भर दे। ये काम हमारा परमेश्वर में आनंदित कर दे। ये काम हमारे अंदर से आनंद के साथ पूरा कर ले। अब फादर गॉड, जो लिमिट करने वाला आत्मा हमारी शक्ति को खत्म कर रहा है, कम ऑन, डाई, डाई, वो शक्तियाँ डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो शक्तियाँ, आई कमांड, डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबांत अखम आशकर खतीन रबाह खस्सा। परमेश्वर का आत्मा हमारी कुव्वत बन जा, हमें आगे लेकर चल। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आमोस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। पवित्र आत्मा, आप हमें वचन सिखाने की विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। चैप्टर 1, गॉड्स जजमेंट्स अपॉन साइरिया, द फिलिस्टाइंस, टाइरस, एदोम एंड अम्मोन। फर्स्ट वर्स से, the words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. He said, the Lord will roar from Zion and utter his voice from Jerusalem, and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top Carmel shall wither. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Damascus and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they have threshed Gilead with threshing instruments of iron. But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Ben-Hadad. I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the scepter from the house of Eden. And the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the Lord. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Gaza, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they carried away captive the whole captivity, to deliver them up to Edom. But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces thereof, and I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the scepter from Ashkelon. And I will turn mine hand against Ekron, and the remnant of the Philistines shall perish, saith the Lord God. Thus saith the Lord,
for 3 transgressions of Tyrus, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they delivered up the whole captivity to Edom, and remembered not the brotherly covenant. But I will send a fire on the wall of Tyrus, which shall devour the palaces thereof. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Edom, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath forever. But I will send a fire upon Teman, and which shall devour the palaces of Bozrah. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of the children of Ammon, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they have ripped up the woman with child of Gilead, that they might enlarge their border. But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof with shouting in the day of a battle, with a tempest in the day of the whirlwind. And their king shall go into captivity, he and his princes together, saith the Lord. Chapter 2, God's wrath against Moab, Judah and Israel. First verse. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Moab, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because he burned the bones of the king of Edom into lime. But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kerioth, and Moab shall die with tumult, with shouting, and with the sound of the trumpet. And I will cut off the judge from the midst thereof, and will slay all the princes thereof with him, saith the Lord. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Judah, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they have despised the law of the Lord, and have not kept his commandments, and their lies caused them to err, after the which their fathers have walked. But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Israel, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes, that pant after the dust of the earth on the head of the poor, and turn aside the way of the meek. And a man and his father will go in unto the same maid to profane my holy name, and they lay themselves down upon clothes laid to pledge by every altar, and they drink the wine of the condemned in the house of their God. Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks. Yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath. Also I brought you up from the land of Egypt, and led you 40 years through the wilderness, to possess the land of the Amorite. And I raised up of your sons for prophets, and of your young men for Nazarites. Is it not even thus, O ye children of Israel, saith the Lord? But ye gave the Nazarites wine to drink, and commanded the prophets, saying, Prophesy not. Behold, I am pressed under you, as a cart is pressed that is full of sheaves. Therefore the flight shall perish from the swift, and strong, and the strong shall not strengthen his force, neither shall the mighty deliver himself, neither shall he stand that handleth the bow, and he that is swift of
of foot shall not deliver himself, neither shall he that rideth the horse deliver himself. And he that is courageous among the mighty shall flee away naked in that day, saith the Lord. Chapter 3. The necessity of God's judgments against Israel. First verse say, Hear this word that the Lord hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, You only have I known of all the families of the earth. Therefore I will punish you for all your iniquities. Can two walk together except they be agreed? Will a lion roar in the forest when he hath no prey? Will a young lion cry out of his den if he have taken nothing? Can a bird fall in a snare upon the earth, where no gain is for him? Shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all? Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Shall there be evil in a city, and the Lord hath not done it? Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. The lion hath roared, who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy? Publish in the palaces at Ashdod, and in the palaces in the land of Egypt, and say, Assemble yourselves upon the mountains of Samaria, and behold the great tumults in the midst thereof, and the oppressed in the midst thereof, for they know not to do right, saith the Lord, who store up violence and robbery in their palaces. Therefore thus saith the Lord God, an adversary there shall be even round about the land, and he shall bring down thy strength from thee, and thy palaces shall be spoiled. Thus saith the Lord, as the shepherd taketh out of the mouth of the lion 2 legs or a piece of an ear, so shall the children of Israel he taken out that dwell in Samaria, in the corner of a bed, and in Damascus in a coach. Hear ye and testify in the house of Jacob, saith the Lord God, the God of hosts, that in the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him, I will also visit the altars of Bethel, and the horns of the altar shall be cut off and fall to the ground. And I will smite the winter house with the summer house, and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, saith the Lord. Chapter 4. Israel reproved for oppression, for idolatry, and for their incorrigibleness. Okay, फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. Hear the word, ye kin of Bashan, that are in the mountain of Samaria, which oppress the poor, which crush the needy, which say to their masters, Bring and let us drink. The Lord God hath sworn by his holiness that, lo, the days shall come upon you, that he will take you away with hooks, and your posterity with fish hooks, and ye shall go out at the breaches, every cow at that which is before her, and ye shall cast them into the palace, saith the Lord. Come to Bethel and transgress at Gilgal, multiply transgression, and bring your sacrifices every morning, and your tithes after 3 years, and offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, and proclaim and publish the free offerings for this liketh you, O ye children of Israel, saith the Lord God. And I also have given you cleanness of teeth in all your
cities, and want of bread in all your places. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. And also I have withholden the rain from you, when there were yet 3 months to the harvest, and I caused it to rain upon one city, and caused it not to rain upon another city. One piece was rained upon, and the piece whereupon it rained not withered. So 2 or 3 cities wandered unto one city to drink water, but they were not satisfied. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. I have smitten you with blasting and mildew, when your gardens and your vineyards and your fig trees and your olive trees increased. The palmer worm devoured them. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt. Your young men have I slain with the sword, and have taken your horses, and I have made the sting of your camps to come up unto your nostrils. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Therefore thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. For lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth. The Lord, the God of hosts, is his name. हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से आमोस के भविष्यवाणी की पुस्तक 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहला अध्याय पहले वचन से। तकोवावासी आमोस, जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जिया के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन देखकर कहे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयाँ विलाप करेगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। इस्राएल के पड़ोसी राज्यों का न्याय आराम। 3 वचन से आगे यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेन-हदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नामक तराई के रहने वालों को और बेत एदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नष्ट करूंगा, और अराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। पलिश्तिया 6 वचन से आगे यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा के शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपने हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। सोर
9 वचन से आगे, यहोवा यो कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई किसी वाचा का स्मरण न किया। इसलिए मैं सोर के शहरपनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। एदोम 11 वचन से आगे, यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्रा के भवन भस्म हो जाएंगे। अम्मोन 13 वचन से आगे, यहोवा यूं कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हकीम समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। मोवाब 2 अध्याय से पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, मोवाब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोवाब में आग लगाऊंगा और उससे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे और मोवाब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्याय का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हकीमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहूदा 4 वचन से आगे, यहोवा यूं कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। इसराइल का न्याय 6 वचन से आगे, यहोवा यूं कहता है, इसराइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराए। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्ष का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। परंतु तुमने नाजीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी न करे। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे पुलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थी का सामर्थ्य कुछ काम न देगा और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा। सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा और शूरवीरों में जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है।
3 अध्याय पहले वचन से, हे इस्राएलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश में लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। भविष्यद्वक्ता का कार्य 3 वचन से आगे, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गरजा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? सामरिया का विनाश 9 वचन से आगे, अशदोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं, वे सिधाई से काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इस्राएली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है। देखो, और याकूब के घराने से यह बात चिताकर कहो, जिस समय मैं इस्राएल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सींग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। मैं जाड़े के भवन को और धूप काल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथी दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे और बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। 4 अध्याय पहले वचन से, हे बाशान की गायो, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिए। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो, तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएगी। तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल सुधरने में असफल। 4 वचन से आगे, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको लहू और गेरई से मारा है
और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिंदवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हमें तेरे वचनों में फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 20 chapter 11 verse से 18 verse, 2 Chronicles 28 chapter। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 11 वचन से 18 वचन। दूसरे इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय। हम अकेले में व्यक्तिगत समय में यह बाइबल रीडिंग करने की सोची है। 2 साल के बाइबल रीडिंग को हम अकेले पर्सनल टाइम में कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे पर्सनल लाइफ का हिसाब ले, हमारे अंदर वो जायज़ा ले और समझ जाए कि हमें कौन सी जगह में सुधार करना है, और हम उस सुधार को प्राप्त करने का अनुग्रह भी प्राप्त कर सके। ऐसा ही चाहते हैं हम, इसीलिए हम अकेले में बैठकर यह 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान की सोच ली है। अगर आप अपने तरीके से आप इसे पढ़ना चाहते हैं वैसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने अपने लिए अकेले में पढ़ने का लाभ उठाने का सोचा है। और यही बात है कि परमेश्वर का आत्मा जैसे भी आप पवित्र वचन पढ़ते हो, हम सब की सहायता करे, और निश्चित हमें परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है इस बाइबल रीडिंग के अवसर में। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के आत्मा हमें फिट कर, फिक्स कर, और हमें ईश्वरीय रचना में, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।